حضور نبیل ملت علامہ الحاج شاہ سید نبیل احمد حیدر القادری سجادہ نشین خانقاہ عالیہ حیدریہ حسن پورہ شریف، اور آپ منبر نور پر اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضور بدر طریقت حضرت علامہ الحاج شاہ ڈاکٹر سید ناہید احمد حیدر القادری نائب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ حیدریہ، اور نبی حضور محدث اعظم ہند خطیب اعظم ہند حضرت علامہ و مولانا سید راشد مکی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی کی چوچا شریف، اور دیگر ہمارے شورائے کرام جناب دلکش رانچوی اور مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان جناب محبوب گوہر صاحب قبلہ، ان تمام منبر شریف پر علماء کرام اور شورائے اسلام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان سیدنا ومولانا وملجنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وقطبنا ونظامنا وسراجنا وفریدنا واشرفنا وخلیلنا ووکیلنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، یتیموں کو انگلی پکڑوا کر راستہ دکھانے والا نبی، بیواؤں کو اپنے کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین، سدرہ سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لامکہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکہ اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر دونوں جہاں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں جھوم کر درود پاک پڑھے باواز بلند اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سر شام سے لے کر اب تک آج کی اس حیدری کانفرنس میں آپ شامیان رحمت کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے جذبے اور محبت کو سلامت رکھے۔ دل چاہتا ہے ان بزرگوں کی زیارت کر کے کہ رسول کائنات کی بارگاہ میں نعت پاک کا مطلب پیش کریں۔ آپ سننے کو تیار ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے آگے سے پیچھے تک تمام لوگ بول دیں سبحان اللہ۔ نعت پاک کا مطلب آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ بولو ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں بھی نہیں ان پہ
شیر اگر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں قسم خدا کی آپ مچل جائیں گے. ملاحظہ کریں. ایک دن تو ہمیں پل سے یوں پار لگانا ہے. ایک دن تو ہمیں پل سے یوں پار لگانا ہے. زہرا کا جو بابا ہے, زہرا کا جو بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حیدری کانفرنس, حیدری کانفرنس. نعرہ تکبیر. زہرا کا جو بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. پھول سے مطلب انشراف ہے جو تلوار سے زیادہ باریک, تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اس پھول سے بھی پار ہمارے سرکار ہمیں لگا دیں گے. جو زہرا کے بابا ہیں, حسنین کے نانا ہیں, وہ ہمیں پار لگا دیں گے. تو جو زہرا کا جو بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور آخری شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں. تیزی کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ ملک کے بہترین شعراء اور خطبہ کی آمد ہو چکی ہے ممبر شریف کا. اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند دیر آپ کے درمیان گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین ہے. کیا ہے؟ سب سے بہتر دین اسلام ہے. آج جس ماحول سے ہندوستان کی سرزمین پہ خاص طور سے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں, ہر طرف مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اسلام کے خلاف نئی نئی سازشیں رچی جا رہی ہیں, اسلام کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ارے جس اسلام کے فتح کے جھنڈے کو مصطفیٰ جان رحمت نے گاڑ دیا ہو, اسے دنیا کی کون سی طاقت گرا سکتی ہے؟ بتاؤ, جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے گاڑ دیا ہو, اس جھنڈے کو کون گرا سکتا؟ اس اسلام کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو غدار بتایا جا رہا کہ مسلمان اپنے دیش کا غدار ہے. ہم سے ہماری وفاداری پوچھتے ہو, ہم سے ہماری وفاداری پوچھتے ہو, ہم سے ہماری وفاداری پوچھتے ہو,
हमारे देश का एक नौजवान बच्चा अगर हिंदुस्तान छोड़ के सऊदी गवर्नमेंट में कमाने के लिए जाता है, सऊदी गवर्नमेंट में जब कमाने के लिए वो जाता है, कमा कर पैसा इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद हिंदुस्तान में पैसा भेजता है, अपने बाप को फोन करता है, बाबा मैं चंद दिनों के बाद आने वाला हूं, मैंने चंद पैसे भेज दिए हैं, घर को तैयार कर लेना, सीमेंट ले लेना, सरिया ले लेना, बालू ले लेना, सब कुछ लेकर घर को तैयार करना, मैं आने वाला हूं, मेरे आने से पहले घर तैयार हो जाना चाहिए। बाप बेटा सऊदी गवर्नमेंट में कमा रहा है, वहां से कमाने के बाद से एक अपने बाप को फोन करके कहता है कि ए बाबा तुम मुझे, मैं पैसा भेज रहा हूँ, तुम मुझे सीमेंट खरीद लेना, ईंटें खरीद लेना, सीमेंट खरीदना, बालू खरीदना, सरिया खरीद लेना। अमाजर मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर नौजवान, अगर बूढ़ा बाप हिंदुस्तान में सरिया खरीदने जाता है तो वो किसी अमेरिका से नहीं खरीदता, बालू खरीदता है, इंग्लैंड से नहीं खरीदता, सीमेंट खरीदता है, लीबिया से नहीं खरीदता, अगर ईंट खरीदता है पाकिस्तान से नहीं खरीदता। अरे मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान का बूढ़ा बाप, हिंदुस्तान के बूढ़े बाप को देखोगे, वो हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान में खरीदता है। अगर सीमेंट खरीदना हुआ हिंदुस्तान ही में खरीदता है। कितने वफादार हैं हमारे देश के वो नौजवान जो कमाते हैं इस्लामी मुल्कों में और जमा करते हैं हिंदुस्तान की बैंकों में, और कितने गद्दार हैं इस देश के नेता जो कमाते हैं हिंदुस्तान में, जमा करते हैं स्विट्जरलैंड की बैंकों में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, हैदरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने गद्दार हैं इस देश के नेता जो कमाए हिंदुस्तान में और जमा करना होता है तो स्विट्जरलैंड की बैंकों में नजर आते हैं। हमसे हमारी वफादारी पूछते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान उस वक्त तक हिंदुस्तान की धरती पे रहेगा जब तक अजमेर की धरती पे राजा गरीब नवाज अपनी कब्र में रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अजमेर की धरती पे अपने कब्र में रहेंगे तब तक हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, जब तक मखदूम में मारे न रहेंगे हम भी रहेंगे, मखदूम में किचौछा रहेंगे हम भी रहेंगे, मखदूम में हिंद रहेंगे हम भी रहेंगे, मखदूम में बिहारी रहेंगे हम भी रहेंगे, सरफुद्दीन मिर्जा मानेरी रहेंगे हम भी रहेंगे, सैयद अहमद चरमपोश रहेंगे हम भी रहेंगे। उन्हें कह लेने दो जब तक खलीफे पाक का पैजान सादका आलिया हैदरिया से जारी होता रहेगा हम भी रहेंगे। हमें निकालने वाली कोई ताकत पैदा नहीं हुई, मगर यही इस्लाम है। आज उस इस्लाम को हम भूल चुके जिस इस्लाम की हमें जरूरत थी। हम तो लाखों करोड़ों अरबों में हैं, फिर भी हम कमजोर, फिर भी हम मजबूर, फिर भी हम परेशान। वजह क्या? हमारे अंदर वो चीज पैदा क्यों नहीं हो रही जो कब 313 रहकर हजारों पे भारी थे। आज हम करोड़ों में हैं फिर भी परेशान। जानते हो हमें उस इस्लाम की जरूरत है, हमें अपने अंदर उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें सिद्दीक की सदाकत नजर आती हो। बोलो, उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें फारूक की अदालत नजर आती हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें उस्मान की सखावत नजर आती हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें अली की शजाअत नजर आती हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें हुसैन की शहादत नजर आती हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें गौसे आजम का तकद्दुस नजर आता हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें ख्वाजा की अदा नजर आती हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें महबूब इलाही की सदा दिखती हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें महबूब की छोटा की मोहब्बत दिखती हो। उस इस्लाम को पैदा करना है जिसमें मोहम्मद में बिहार
बिहारी की इश्क और मोहब्बत दिखती हो, मुसलमानों अगर उस इस्लाम को पैदा करना चाहते हो जिसमें सिद्दीक की सदाकत भी हो, जिसमें उमर की अदालत भी हो, जिसमें उस्मान की सखावत भी हो, जिसमें अली की शुजाअत भी हो, जिसमें गौसे आज़म का तकद्दुस भी हो, जिसमें ख्वाजा की अदा भी हो, महबूब इलाही की सदा भी हो, मखदूम की जोजा की मोहब्बत भी हो, मखदूम बिहारी की अकीदत भी हो, अगर उस इस्लाम को देखना चाहते हो तो कसम खुदा की कहीं और ना जाना, नबी ने मिल्लत के चेहरे को अकीदत की निगाह से देखना, तुम्हें वो इस्लाम नजर आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मोहब्बत से अपने मुर्शिद के चेहरे को देख लेना, तुम्हें वो इस्लाम नजर आ जाएगा। उस इस्लाम को पैदा करने की जरूरत है। कब पैदा होगी? जब इसके मुस्तफा का चिराग दिल में रोशन होगा, जब बुजुर्गों की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन होगा, जब ये चीज हमारे दिलों में रोशन हो जाएगी तो कसम खुदा की हम इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी हमारी कामयाबी का रुतबा पड़ा जाएगा। इसको मोहब्बत को पैदा करना है। जानते हो इस इश्क में कितनी ताकत है। अगर रसूल से मोहब्बत करो, रसूल से इश्क करो, रसूल से प्यार करो तो जानते हो कितनी ताकत है। रसूल से प्यार करने वालों ने जब प्यार किया है तो अपनी जान को गवा दिया है, किसी चीज की परवाह नहीं की। आखाई नामेदार सरवरे कायनात से मोहब्बत करने वालों ने जब मोहब्बत की है तो अपने जान की परवाह नहीं की। अरे जब बिलाल तपती हुई धूप में कोड़े खाते थे तब भी वो कहते थे मुझे मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि इसमें इश्क़े मुस्तफा में मार खा रहा है। जब इश्क़े मुस्तफा में मार खाते हो तो बिलाल को मजा आता है, तो सोचो इश्क़े मुस्तफा में जब जान दोगे तो कितना मजा आएगा। इश्क़े मुस्तफा में बहुत ताकत है। आपको एक हदीस बात वैसे गुजार कर दूं, ये इश्क में इतनी ताकत है, इस इश्क में इतनी ताकत है मुसलमानों कि जब हजरत साद इब्ने वक़ास लश्कर जर्रार के साथ इस्लाम के झंडे को फतह करने के लिए निकले थे, इस्लाम के फतह के झंडे को गाड़ने के लिए निकले थे, लश्कर जर्रार साथ में है, साद इब्ने वक़ास सालारे काफिला बन के आगे आगे चल रहे हैं। आप आगे बढ़ते गए, दरिया का किनारा आया, दरिया के किनारे पर हजरत साद इब्ने वक़ास रुक जाते हैं। कहा ए लश्करियों, जाओ खोजो कोई कश्ती नजर आ रही है। सबने देखा कश्ती नजर नहीं आई, कोई इंतजाम नहीं था कि दरिया को पार किया जा सके, कोई सहूलत नहीं थी जिससे दरिया पार कर लिया जाए। जब वो दरिया पार करते तब जाकर के कुफार से जंग होती और जाकर के इस्लाम के परचम को लहराते, मगर कोई चीज नहीं। आज का मुसलमान होता कहता है हजरत साद इब्ने वक़ास चलिए वापस चलते हैं, जिस दिन सवारी आएगी उस दिन पार कर लेंगे, जाकर फतह के झंडे को गाड़ देंगे। मगर कितनी मोहब्बत, कितना इश्क सहाबा के दिनों में। साद इब्ने वक़ास कहते हैं ऐ सहाबा की मुक़द्दस जमात, तुम नहीं जानते कि मुस्तफा की मोहब्बत में कितनी ताकत है, मुस्तफा के इश्क में कितनी ताकत है। साद इब्ने वक़ास कहते हैं ऐ लश्करियों सुनो, मैं आगे आगे चलता हूँ, नारे तकबीर और रिसालत के नारे लगाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, तुम पीछे पीछे आना, हम दरिया पार कर लेंगे। कसम खुदा की हदीस की अल्फाज ही कहते हैं कि जब साद इब्ने वक़ास ने अपने घोड़े को दरिया पे दौड़ाया है तो कसम खुदा की तारीख शाहिद है कि दरिया के ऊपर घोड़ा दौड़ रहा था तो दरिया का पानी छिटके मार के उबाल मार रहा था। और जब उस दरिया को पार किया है साद इब्ने वक़ास ने तो अल्लामा इकबाल अपने कलम से रोक न सके, कहने लगे